Hello, sixth graders. I hope you all are well at your home and doing very well in your studies. This is your chapter 6 in Civics is the local self-government in urban areas. In this chapter we are learning that local self bodies who are working in the urban areas. Right, urban areas. And in our last video we have already learned about the Nagar Panchayat. नगर पंचायत हु वर्कड इन द टाउन. नगर पंचायत आपकी कहाँ काम करती है? टाउन में काम करती है. एंड टाउन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एरिया. एंड वाई वी कॉल द टाउन एज अ ट्रांजिशनल एरिया? बिकॉज विलेज आर टर्न इनटू टाउन इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल. क्या हुआ है? उनका ट्रांसफॉर्म हुआ है फ्रॉम विलेज टू टाउन. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल एरिया. Okay, in this video we are going to learn about the municipalities. A municipality also called a municipal committee or a municipal council. Municipality को हम municipal committee भी बोलते हैं and municipal council भी बोलते हैं. So don't get confused in this. Okay students, is a local self-governing body in smaller towns and cities. ये कहाँ की self governing body? आपकी smaller towns and cities. It means municipalities are work under the smaller towns and cities. जो आपकी साइज में पॉपुलेशन में कम होते हैं उन्हें हम स्मॉलर टाउन्स या सिटीज़ में कौन काम करता है? म्यूनसिपैलिटी. इट मीन्स द म्यूनसिपल कमेटी एंड द म्यूनसिपल काउंसिल ऑल्सो. So let's see the composition of the municipality. Composition means how they formed and which kind of process they have to form a municipality in a local bodies like towns and cities. So let's start the students. All citizens of India who are 18 years of age and above can vote in municipal elections. It means if you are above the 18, so you can also the vote for the municipal elections. आप क्या कर पाओगे? आप वोट दे पाओगे if you are above the 18. The candidates who wish to contest an election must be 21 year age. So अगर आपको वोट करना है दैट मीन्स यू हैव टू अबाउ द 18. बट इफ़ यू वांट टू कॉन्टेस्ट मीन्स इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन देन यू हैव टू बी 21 ईयर ओल्ड. आपको कितना होना चाहिए? 21 ईयर ओल्ड होना चाहिए. ओके, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एंड सिटी डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन म्यूनसिपैलिटीज. इट मीन्स the size and the population of the town or city determine the numbers. Which numbers? The members of municipality की कितने members आपके perform करेंगे. Suppose if there are the 100 people in a town and in village, so you will get 10 to 5 members. But if the population is increased, then the member of municipality is also increased. Okay. Now the city is divided into number of wards. As I already told you that what is wards? Wards is just a committee for the electoral subject जो क्या करती है? आपकी इलेक्शंस को हेल्ड करती है, उसे हम बोलते हैं वार्ड. वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड. इसमें क्या आपको मैंने बोला था? ईच वार्ड मीन्स अगर आपके पास ये कम्युनिटी ये ग्रुप है जो इलेक्शन ले पा रहा है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो इन चारों के लिए आपके पास अलग अलग वार्ड होंगे और हर एक वार्ड में से आप एक मेंबर को चूज़ करेंगे. ओके, एंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन एवरी म्यूनसिपैलिटी. Or that's very important students, let's mark this line that some seats are reserved in every municipality. reserved मतलब होता है बचा के रखना, जिसे हम सुरक्षित रखते हैं. किस चीज़ को? कुछ सीटें ऐसी हैं जिन्हें हम रिजर्व करके रखते हैं फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स. मीन्स दोज पर्सन हु बिलोंग्स these categories, scheduled caste and scheduled tribe. And why we reserve these seats for these two particular caste? Because according to our government we have to make some reservation for all for these caste, because these are the some so dis
so backward, okay, according to other tribes. So that's why we reserve some seats for them. Even one third of the total seats are reserved for women. मीन्स आपका वन थर्ड जो सीट है वो किसके लिए रिजर्व्ड होता है, वुमेंस के लिए रिजर्व्ड होता है. एंड ये आपको कहाँ मिलेगा, म्यूनसिपैलिटी में मिलेगा एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी आपको ये मिलेगा. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका वन थर्ड और कुछ सीटें आप किसके लिए रिजर्व करते हो, फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन एज वेल एज. मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स मीन्स आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट्स मेंबर आर ऑल्सो इलेक्टेड फ्रॉम दैट एरिया, वहाँ से इलेक्ट होते हैं. देन कुछ ऐसे मेंबर्स को भी, सब मेंबर्स आर ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर हैविंग अ स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. उसके बाद कुछ ऐसे मेंबर्स को भी हम वहाँ पे क्या करते हैं, हायर करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है एंड दे नो अबाउट ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्यूनसिपल. ओके, इसके बाद द मेन टर्म इज the municipality is elected a term for 5 year. It means the tenure of the municipality is 5 year कि वो कितने साल तक काम करेगी, 5 साल तक काम करेगी. एंड वाई इट विल बी, बिकॉज अगर आपको ये लगता है कि आपने किसी गलत रिप्रेजेंटेटिव को आपके अकॉर्डिंग चूज़ कर लिया है, देन यू हैव द 5 years फॉर टू ऑब्जर्व द टू वर्क ऑफ ऑल दिस म्यूनसिपैलिटी एंड जजमेंट. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना कंक्लूजन रखेंगे कि इट्स अ गुड और नॉट. सो अगर आपको नहीं पसंद आती है, देन यू कैन चेंज इन द 5 year एंड कन्विंस ऑल अदर पर्सन्स ऑल्सो. ओके, देन इन अ सच अ केस न्यू मेंबर हैव टू बी इलेक्टेड विद इन अ 6 member. अगर आपका जो ये मेंबर्स आपकी म्यूनसिपैलिटी में आए हैं, इफ़ दे फाउंड इन समवेयर गिल्टी और द सम इन means incompetent, it means that not having a quality such as to be become a successful, so we can dissolve this municipality. एंड अगर हम इसे कर तो सकते हैं डिज़ोल्व, बट विद इन अ 6 months, आपको 6 months के अंडर आपको एक न्यू कंप्लीटेड टर्म कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई मेंबर फाइंड आउट करना होगा. ओके, म्यूनसिपैलिटीज़ हैव मीटिंग एट रेगुलर इंटरवल्स. यहाँ पे आपके जो मीटिंग है वो रेगुलर होती रहती है. इसके बाद दे मेंबर्स इलेक्ट अ चेयरपर्सन. इसके बाद वो क्या करते हैं, एक चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं जो क्या करता है, प्रिसाइड्स करता है. इट मीन्स आपकी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसको आगे बढ़ावा देता है, उसको आगे कंडक्ट करवाता है. हु कंडक्ट द मीटिंग्स इन द म्यूनसिपैलिटी, students? Yes, it's a chairperson. Okay, a head of the municipality is called the commissioner. जो हेड होता है म्यूनसिपैलिटी का उसे हम क्या बोलते हैं, कमिश्नर और प्रेसिडेंट. ओके, इन केस अगर आपका जो प्रेसिडेंट है वो गिल्टी पाया जाता है या फिर किसी वजह से किसी स्कैम में पाया जाता है एंड उसे हम रिमूव करते हैं, तो उस टाइम तक आपका जो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट के बाद क्या आएगा आपके पास, आफ्टर द प्रेसिडेंट वी हैव द डिप्टी प्रेसिडेंट, जो इसकी जगह फर्स्ट वाले की जगह क्या करेगा, कुछ दिन के लिए काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इन योर क्लास यू हैव द 2 monitors, राइट, द फर्स्ट एंड द सेकेंड. समटाइम्स whenever your first monitor is on absence, then the second monitor will perform all the work in behalf of the first monitor. Okay, so as well as here, when the first president was not there, then the vice chairperson elect the deputy president to perform all the activities of the vice president. A vice chairman is elected to take charge into her absence. वाइस प्रेसिडेंट कौन काम करता है, अगर आपका चेयरपर्सन इसमें एब्सेंस रहते हैं. ओके, देयर आर एग्जीक्यूटिव. इसके बाद क्या, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी, हेल्थ ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर. ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कौन प्रोवाइड करवाता है, प्रेसिडेंट विल बी प्रोवाइड बाय फॉर यू. ओके, देन वी हैव, आई होप आपको म्यूनसिपैलिटी समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. देन वी हैव द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. बोथ द टॉपिक आर सो मच सिमिलर बट इट हैज़ सम डिसिमिलैरिटी, सो लेट्स explain it, discuss it. As in the case of some smaller towns, large cities are also divided into wards to elect members
टू लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी। इसके अलावा क्या होता है, जैसे आपने अभी पढ़ा कि स्मॉल विलेज में भी क्या करते हैं ये लोग, विलेज में भी आपका क्या कर रखा है, सिटीज़ को डिवाइड किया गया है इलेक्ट टू मेंबर्स, जहाँ से आपके पास जितने मेंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं या फिर अपनी पार्टिसिपेशन के लिए आते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनके लिए हमने एक लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनाई होती है, उसके लिए मेंबर्स कंडक्ट करते हैं जो उनको हैंडल आउट करते हैं। The two members of seat depends upon the size of the population. Yes, the number of members, मतलब कि इसमें भी आपके जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, पॉपुलेशन पे। यस, इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन वेदर इट विल बी है सम नगर पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आगे रीड करना पड़ेगा। All adult citizens can vote and anyone above the age of 21 can contest the election. Yes, students, the same thing when where we learn in the municipality. Okay, in municipality you can vote for your representative in the election, but you have to be above 18. And if you want to participate in the election, then you have to be the age of 21. Okay, so these are some similarity and the dissimilarity of the municipalities and the municipal corporation. So in our next chapter we will learn about the composition, कि कैसे हमारी municipal corporation formed होती है and what are their functions also. Then we will learn some the committees. Committees is like a group who are, so students, some committees means some groups are formed for some personal and some important task performed करने के लिए, activities perform करने के लिए, and the numbers of the member in each committee is 5 to 12 members. हर एक कमेटी में आपको कितने, करीबन आपको 5 to 12 members आपको मिलेंगे. And the public health committee play an important role in the administration cities. उसके बाद पब्लिक हेल्थ कमिटीज़ मीन्स जो हमारे हेल्थ, हमारे हाइजीन को भी ध्यान में रखती है, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि वो वहाँ हाइजीन बना सके और अपने आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा बना सके. ओके, सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट समथिंग द फंक्शन and source of income for our municipalities. Okay students.